classification of matter. Matter is classified into mixture and pure substances. Mixture is classified into homogeneous and heterogeneous mixture. Pure substance has been classified into elements and compounds. Element is again classified into metals, non-metals, and metallites. So that is what we have seen. ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया है. ठीक है. Furthermore, हमने जैसे आगे चले, हमने इसके अंदर डिस्कस किया what is मतलब what are the states of matter. Then we have seen the physical properties. तो हमने physical property को उसके अंदर डिस्कस किया. Then furthermore we have seen what is unit, what is fundamental, what is a fundamental unit, what is a derived units, and the types of we have seen. Furthermore, we have seen what are the measurable physical properties. We have seen that is mass, length, volume, temperature, then density. These are the properties what we have seen. What we can measure for the matter. ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया. और जैसे हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर आगे चलते हैं, इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस कर दिया. That is कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया ना, that is लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो अभी भी यहाँ पे बोर्ड पर आपको दिखाई देता है. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे हमने बताया कि केमिकल रिएक्शंस कैसे भी नहीं होते हैं. All chemical reactions are governed by some certain laws or rules, and that's what we are seeing here, the laws of chemical combinations. तो काफी important topic था जिसके अंदर हमने देखा था कि there are 4 laws of chemical combination of we are seeing. तो number 1 था हमारा law of conservation of mass, दूसरा था law of definite proportion, तीसरा था law of multiple proportion, और last वाला था हमारा Gay-Lussac's law of combining volume of gases. These are the 4 laws what we are seeing. तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग लास्ट के लॉज रिकॉल करते कि कल हमने क्या देखा था. व्हिच आर द दिस इंपॉर्टेंट लॉज, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स फॉर दिस लॉज. तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो व्हाट इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड हमने देखा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस के अंदर व्हाट वी हैव सीन इन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज एनी फिक्स्ड एलिमेंट ऑलवेज कंटेन, एनी फिक्स्ड कंपाउंड ऑलवेज कंटेन अ फिक्स्ड एलिमेंट. सॉरी आई एम करेक्टेड. एनी कंपाउंड ऑलवेज कंटेन अ फिक्स्ड एलिमेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन by the weight irrespective of source or method of preparation is known as law of definite proportion. तीसरा था हमारा law of multiple proportion. law of multiple proportion के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि what is this law of multiple proportion. Whenever two elements, that is either A and B, come chemically combine with each other forming 2 or more compounds, then the masses of this element bear a simple whole number ratio. ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया. फिर हम लोग गए थे लास्ट बात के लिए, that is called Gay-Lussac's law of combining volume of gases. Gay-Lussac's law is applicable to only gaseous substances. तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं, डिस्कस करते हैं, इसके अंदर देखा हमने. So इसका स्टेटमेंट क्या था, whenever gaseous reactant react to form gaseous product, whenever gaseous reactant react to form a gaseous product, then the reactant and product bear a simple whole number ratio. Then the volume of reactant and product bear a simple whole number ratio, provided volumes of all gases should be measured under similar conditions of temperature and pressure. Simply, volume of reactant and product bear a simple whole number ratio. This was the law what we have seen yesterday. ये हमने उसके अंदर लॉ डिस्कस किया था, और ये यहाँ तक मुझे लगता है आपको याद आता होगा, रिकॉल होता होगा. जस्ट सेकंड. सो ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया था. क्लियर विद दिस? तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे की लॉ की तरफ चलते हैं, आगे की लॉ की तरफ मूव करते हैं. आगे का लॉ डिस्कस करना है Avogadro's law of combining volume of gases. So let's go to Avogadro's law of combining volume of gases. So हो सकता है तुम में से कुछ लोग हो जो सीबीएसई बैकग्राउंड से स्टडी किया है या आईसीएसई बैकग्राउंड के स्टडी किया है, वो जानते होंगे what is Avogadro's law. So we have discussed Avogadro's law of combining volume of gases. So Avogadro's law बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है. मतलब जैसे मैंने लास्ट कल के लेक्चर में बताया आपको, Gay-Lussac's law has laid the foundation of modern chemistry. Actually, it's not only a Gay-Lussac's law, but Gay-Lussac's law in association with or in combination with Avogadro's law laid the foundation of modern chemistry. तो दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर.
सो ये जो है ये एवोगैड्रो इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट और इसने ये लॉ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे। क्या कहता है ये लॉ आप देखिए। पहला मैं इसका इलस्ट्रेशन देता हूँ कि सपोज हमारे पास है 3 कंटेनर है, ये पहला कंटेनर है, दिस इज ये दूसरा कंटेनर है और यहाँ पे मानो हमारे पास तीसरा कंटेनर है। ऐसे हम कितने भी कंटेनर ले सकते हैं, कितने भी कंटेनर ले सकते हैं। इसके अंदर मानो नाइट्रोजन गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है और ये सारे क्लोज करके रखे हैं हमने। सपोज ये क्लोज किया हमने यहाँ पे, सो दे आर क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज किया। सो सी नाउ हियर there are 3 containers, empty containers, and which are filled with hydrogen gas and oxygen gas, and they are closed करके रखे हुए हैं। और मानो ये कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, सो दिस इज 1 लीटर और ये सारे सेम साइज के, तो फर्स्ट अगर 1 लीटर का है, दूसरा 1 लीटर का है, तीसरा भी 1 लीटर का है, तीनों 1-1 लीटर के कंटेनर है जिसके अंदर डिफरेंट गैसेस भरे हुए हैं। तो एवोगैड्रो ने ये प्रूव किया, एवोगैड्रो ने ये साबित किया कि अगर ये जो 1 लीटर, ये जो 1 लीटर नाइट्रोजन गैस है, इस 1 लीटर के अंदर अगर 100 मोल्स होते हैं या 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के, अगर नाइट्रोजन के 100 मॉलिक्यूल्स है तो हाइड्रोजन के 1 लीटर के अंदर भी 100 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं और यहाँ पर भी 100 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, क्योंकि कंटेनर सेम है, तीनों गैस लेकिन सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिमिलर होते हैं। दिस इज बीन प्रूव्ड बाय एवोगैड्रो। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मैंने 3 गैस का एग्जांपल दिया है, ऐसे ऑल गैसेस कहते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो। Remember this. So very simple, what is Avogadro's law here? So Avogadro's law states that equal volume of all gases containing equal volume contain same number of molecules. So has the same number of molecules. This is called as Avogadro's law. जैसे कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन हमारे पास 1 लीटर है, हाइड्रोजन हमारे पास 1 लीटर है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 लीटर है। तो अगर नाइट्रोजन के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे भी 100 होंगे, यहाँ पर भी 100 होंगे, यहाँ पर भी 100 होंगे। ऐसे कितने भी गैसेस ले लीजिए आप लोग, अगर उनका वॉल्यूम सिमिलर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सिमिलर होते हैं। या फिर उल्टा कह सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिमिलर है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, सिमिलर होता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच इज पुट फॉर बाय एवोगैड्रो। सो इन दैट सेंस the statement of Avogadro's law, and this is the illustration of Avogadro's law. According to Avogadro's law, equal volume of all gases contain same number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. This statement has to be perfectly understood. Under similar conditions of temperature and pressure, क्योंकि हम जानते हैं volume of gases are affected by temperature and pressure. ये जो वॉल्यूम है उसके ऊपर हम टेम्परेचर कम ज्यादा करते हैं या फिर प्रेशर कम ज्यादा करते हैं तो उनका वॉल्यूम बदल सकता है। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कैसे चाहिए, सिमिलर चाहिए। और अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं, सो इन दैट सेंस व्हाट वी गेट दिस, ये इस तरीके से हम लोगों को उस तरीके से मिल जाता है। सो ऑल ऑफ इट विद दिस, सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर, that is equal volume of all gases contain same number of molecules. So this is what we can say here Avogadro's law. Now the thing is that how Avogadro's law and Gay-Lussac's law collaborates with each other, yeah, helps each other. That is what we discussed here. Because as I stated, Gay-Lussac's law and Avogadro's law has laid the foundation of modern chemistry. That is very important foundation of the modern chemistry they have put forth. सो वो कैसे, वो मैं आपको इलस्ट्रेट करना चाहूंगा बिकॉज दोनों लॉ एक तरीके से हमारे लिए जरूरी है। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Gay-Lussac's लॉ एंड Avogadro's लॉ। Gay-Lussac's लॉ को मैं वापस से क्या दिलाना चाहूंगा कि एग्जांपल जो हमने Gay-Lussac's लॉ के अंदर दिया था वो एग्जांपल मैं वहां पे यहाँ पे वापस लिखता हूँ और उसके आधार पर उसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। कल हमने एग्जांपल लिखा था H2 प्लस Cl2, या फिर अगर हम वर्डिंग में लिखने जाएंगे, वर्डिंग तो हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑप्टेन। तो ये रहा वर्डिंग, मतलब उस टाइम जबकि नोटेशंस प्रॉपर नहीं थे तो Gay-Lussac ने क्या किया था, हाइड्रोजन गैस लिया था, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया था और हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड नाम का गैस तैयार होता है जिसे हम HCl करके जानते हैं। ठीक है, अभी हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड एज H2, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड एज H2 whereas chlorine is represented as Cl2, and अगर हम H2 plus Cl2 लेते हैं तो it will form here twice HCl,
ये रिएक्शन हम अच्छी तरह जानते हैं, ये रिएक्शन हम अच्छी तरह जानते हैं. सो नाउ द थिंग इज दैट भले हम आज के तारीख में मॉडर्न जमाने में ये रिएक्शन हम अच्छी तरह जानते हैं, H2 reacts with Cl2 to produce HCl. This has been clear to us. बट ये किस तरीके से डेवलप होकर हमारे सामने आया, हाउ इट इज बीन डेवलप. मैंने कल भी बात की थी स्टोशियोमेट्री नाम के कॉन्सेप्ट की. मतलब व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज हाउ मच एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज हाउ मच. दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. वो हमें यहाँ पे देखना है. थोड़ा बहुत वो पैरेलली चलते हैं, तो वो थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट थोड़े मिक्स होता है. तो सो तो अभी देखिए गे-लसाक्स ने उस टाइम क्या किया था. गे-लसाक्स ने क्या किया था, गे-लसाक्स took one volume of hydrogen, it needs one volume of chlorine. Whenever one volume of hydrogen reacts with one volume of chlorine, it gives 2 volumes of HCl. 2 volumes of HCl. ये उसका एक ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट था कि अगर हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम लेते हैं तो क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं. और जब वो इस प्रोपोर्शन में रिएक्ट होते हैं तब जाके 2 वॉल्यूम्स प्रोडक्ट तैयार होता है. 2 वॉल्यूम इतना प्रोडक्ट तैयार होता है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम वॉल्यूम को नंबर में प्रेजेंट करते हैं, मतलब वॉल्यूम का यूनिट कौन सा है, लीटर, तो हम लीटर में प्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम ऐसा लेते हैं कि n लीटर हाइड्रोजन का अगर n लीटर लिया जाता है तो इसका भी n लीटर चाहिए, क्लोरीन का भी n लीटर चाहिए, तब जाके इसका बनता है 2 लीटर्स, ट्वाइस n लीटर इतना बनता है. सो ये होता है. इसका मतलब ऐसा है कि n नंबर ऑफ लीटर्स, मतलब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम ऐसे लेते हैं कि इसका 1 लीटर लेते हैं, देख लेना यार, n नंबर ऑफ लीटर्स हम लोग अभी 1 लीटर पे आए. We have taken 1 liter of hydrogen and we have reacted it with 1 liter of chlorine. Then it forms 2 liters of HCl. कितना मिलता है, 2 liters of HCl. ये रेशियोज का फॉर्मेट है जो फॉलो किया जाता है, जो हमने लॉ के अंदर भी देखा था. सो अगर हमने 1 लीटर हाइड्रोजन लिया तो क्लोरीन भी 1 लीटर चाहिए मतलब चाहिए 1 लीटर ही चाहिए, और तब जाके इसका बनता है 2 लीटर्स. तो इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, देखिए रेशियो होता है 1:1:2. This is the ratio. मतलब ये 1 इसका है, ये 1 इसका है और इसका 2 है. 1:1:2 is the ratio. 1:1:2 is the ratio which is formed here. इसी रेशियो में हाइड्रोजन क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं to form HCl. तब जाके we got an HCl over here. So this is the way how they react with each other. Now the thing is that कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हमने इसका 1 लीटर लिया और हमने क्लोरीन का 2 लीटर लिया, तो क्या होता है. This has been also checked by गे-लसाक्स and he found that अगर हमने इसका 1 लीटर लिया और इसका 2 लीटर लिया तो इसके कितने बनेंगे. तो ये रेशियो की याद, अगर रेशियो को अगर ठीक से हमने समझा हुआ है तो इसके 1 लीटर के साथ इसका 1 ही लीटर तैयार होने वाला है. तो अगर हमने ऐसा लिया इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर, तो इसका 2 लीटर्स ही बनेगा. द रीजन बिहाइंड दैट, इसके 1 लीटर के साथ क्लोरीन का 1 ही लीटर रिएक्ट हो सकता है, रिमेनिंग जो है वो एक्स्ट्रा में रहेगा, वो वैसे ही रहेगा, वो रिएक्ट नहीं होगा. Because इसके 1 लीटर के साथ एक ही रिएक्ट होता है. This is the natural reaction. What happens? So that's why 1 liter will be extra. वो वही रहेगा, वो बना रहेगा. और इसका 1 और इसका 1 लीटर रिएक्ट होता है तो यहाँ पे डबल क्वांटिटी तैयार होता है. It must be 2 liter. अगर हम उल्टा करते हैं, we took 2 liters of this and 1 liter of this, तो इसका कितना बनेगा? It should be again 2 liters. The reason behind that, ratio है 1:1. So हाइड्रोजन के 2 लीटर के साथ क्लोरीन का भी 2 लीटर चाहिए, लेकिन क्लोरीन का 1 ही लीटर है, तो क्लोरीन के 1 लीटर के साथ इसका 1 ही लीटर रिएक्ट हो जाएगा. सो इसका 1 लीटर एक्स्ट्रा में रहेगा एंड इसके डबल मतलब 2 लीटर ही बनेगा. हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं कि मैं इसका 2 लीटर्स लेता हूँ, इसका 2 लीटर लेता हूँ, तो दोनों का रेशियो सिमिलर है, 1:1 है, मतलब 2:2 है, 3:3 लाइक दैट, 1:1 होता है. तो 2:2 है, तो इसका डबल क्वांटिटी मतलब हियर विल बी 4 लीटर्स, तो ये 4 लीटर तैयार होता है. These are the observations made by गे-लसाक्स. तो गे-लसाक्स ने ये देखा कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ किस रेशियो में रिएक्ट होता है, तो 1:1 रेशियो में रिएक्ट होता है. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन अगर 1 लीटर है तो क्लोरीन 1 लीटर ही चाहिए. अगर हम क्लोरीन का क्वांटिटी 1 लीटर से ज्यादा लेते हैं तो वो रिमेनिंग वो बचा रहेगा, बना रहेगा, और कम लेते हैं तो उसके कम क्वांटिटी से उसका भी कम क्वांटिटी रिएक्ट होगा, लग दैट. बट रेशियो विल बी मेंटेन सेम 1:1:2. और ये दोनों का जितना प्रोपोर्शन में रिएक्ट होगा उसके डबल क्वांटिटी इसका बनेगा. अगर मतलब इसका 10 लेते, इसका 10 लेते, इसका 20 बनेगा. 100 लेते तो 200 बनेगा.
आधा आधा लेते तो 1 बनेगा, बिकॉज डबल क्वांटिटीज हैज टू फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज गेला-साक्स लॉ. अगर हम किसी का क्वांटिटी हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं तो इट विल रिमेन इन एक्सेस फॉर्म और इट विल रिमेन इन यू कैन से लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग फॉर्म और लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्मेट में वहां पे बना रहेगा. सो दिस व्हाट वी कैन से. सो सॉरी 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 सो ये इस फॉर्मेट में यहाँ पे रहेगा और इसी फॉर्मेट में हमारे सामने वो आएगा. सो दैट इज व्हाट वी कैन से. ये इसके अंदर. नाउ द थिंग इज दैट हमें डिस्कस करना है कि हाउ ये किस तरीके से बन के हमारे सामने आता है, मतलब हाउ दिस गेला-साक्स लॉ collaborates with Avogadro's law or how they help each other to lay the foundation of chemistry. ये हमें डिस्कस करना है. एक बात समझिए, गेला-साक्स लॉ always talks in the format of volume. It speaks in the format of volume. Volume के फॉर्मेट में बात करता है, वॉल्यूम में ही बात करता है. बट अगर हम लोग एवोगाड्रो की बात करेंगे तो एवोगाड्रो वॉल्यूम और नंबर के फॉर्मेट में बात करता है ना. कि गेला-साक्स क्या कहता है कि whenever gaseous reactant react to form a gaseous product, then the volume of reactant and product bear a simple whole number ratio. Volume of reactant and product bear a simple whole number ratio. मतलब वॉल्यूम्स के फॉर्मेट में बात करते हैं. बट वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दिस इज बीन डन बाय एवोगाड्रो. एवोगाड्रो क्या कहता है? If volumes are equal, then number of molecules has to be similar. Or if volumes are different, then number of molecules has to be different. This is the way, or this is the thing how we can differentiate it. So that's why Avogadro's law is helpful to convert volume into number of molecules. और volume का जो रेशो है, this is given by गेला-साक्स law. तो गेला-साक्स law ने वॉल्यूम का फॉर्मेट दिया और वॉल्यूम के फॉर्मेट को नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो ने कन्वर्ट किया. That's why volume we can convert into number of molecules और number of molecules can be converted into volume. तो कैसे देखिए, अगर हम ऐसा मानते हैं कि 1 liter of hydrogen 1 liter of hydrogen contains n number of molecules. n number of molecules. देखिए अभी 1 liter के अंदर n number of molecules. n मतलब कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 500, 1000 हो सकते हैं. 1 liter of hydrogen contains n number of molecules. n number of molecules है. So this must contain n number of molecules. उसको उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स ही होना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं. तो इसके 1 लीटर के अंदर अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो एवोगाड्रो के लॉ कह सकते हैं वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे. वॉल्यूम 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स n है. यहाँ पे भी वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स n होनी चाहिए. तो n molecules of hydrogen reacts with n molecules of chlorine to produce twice n molecules of HCl. Twice n molecules of HCl ऐसा उसका मतलब होता है, twice n. So this is twice n quantity. Got it? तो अगर हम लोगों को यहाँ पे एक ही तैयार करना या फिर ऐसा मानते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मानो इसका एक ही मॉलिक्यूल होता है, n का वैल्यू 1 लेते हैं तो n is 1, तो here also n is 1 molecule, तो here is also 1, तो 2 molecules ऐसा होता है, क्योंकि n का वैल्यू हमने पुट किया 1. तो ऐसा मानता है कि अगर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होना जरूरी है, होते ही है. दिस इज द रेशियो व्हिच इज बीन प्रूव्ड बाय गेला-साक्स एंड आल्सो बाय एवोगाड्रो. सो इसका एक मॉलिक्यूल है तो इसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होकर इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते ही बनते. अभी देखिए, अगर मुझे इसका एक मॉलिक्यूल बनाना है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है ना, अगर हमें इसका एक मॉलिक्यूल बनाना है HCl तो इसका आधा लेना पड़ेगा और इसका भी कितना लेना पड़ेगा? आधा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, लाइक दिस. तो now whenever we take half molecule of the hydrogen, we need to take a half molecule of chlorine. It produces 1 molecule of HCl. HCl का 1 molecule तैयार हो जाता है. So this is what we can say. तो अभी HCl का 1 molecule. This is hydrogen chloride. थोड़ी सी logically बात कीजिएगा. Just think logically. So this is the 1 molecule of HCl. This is hydrogen chloride compound. So 1 molecule of hydrogen chloride must contain at least 1 molecule of hydrogen and 1 molecule of chlorine. At least minimum. ज्यादा भी हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि 2 लोग बातें कर रहे हैं, हम कहीं से जा रहे हैं मानो और कहीं से आवाज आता है कि 2 लोग बातें कर रहे हैं, तो 2 लोग बातें कर रहे हैं, 2 लोगों की बातें आ रही है, तो इसका मतलब वहां पे मिनिमम 2 लोग हैं. 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन बात करते समय 2 लोगों का आवाज आ रहा है. तो एक गेस होता है, एक लॉजिक होता है उसके पीछे. उसी तरीके से यहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बात करते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसके अंदर एटलीस्ट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड एटलीस्ट 1 एटम ऑफ क्लोरीन इज नीडेड. ज्यादा हो सकते हैं, हमें पता नहीं. आज की तारीख में हमें प्रूव्ड है, इट इज बीन प्रूव्ड
बट उस टाइम जब पता नहीं था, जब केमिस्ट्री डेवलप हो रहा था 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पता नहीं था कि उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम है और कितने क्लोरीन के एटम है। बट लॉजिकली at least one atom of hydrogen has to be there and one atom of chlorine has to be there in a molecule of HCl। ये बात क्लियर होती है। तो अगर हम ऐसा assumption मान लेते हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है, एक एटम ऑफ क्लोरीन है, तो इसके आधे मॉलिक्यूल के अंदर एक क्लोरीन का एटम होना जरूरी है और इसके आधे मॉलिक्यूल के अंदर एक क्लोरीन का एटम होना जरूरी है। सो इसका एक एटम, अगर आधे मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है तो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होंगे। In that sense, we can write H2. H2 क्यों आया और किसने ढूंढ निकाला कि हमेशा H2 होता है? Why we didn't have written H and Cl produces HCl? ऐसा हमने क्यों नहीं लिखा? Because science में ऐसा लिखने का रूल भी नहीं है, तरीका भी नहीं है, और it has been proven also. It has been also proven that कि hydrogen molecule contains two atoms, and that's why here H2 is written. And this has been logically proven because of Gay-Lussac law and Avogadro's law. Gay-Lussac's law and Avogadro's law. Gay-Lussac's law talks in the form of volume, and Avogadro's law talks in the format of number. So volume can be converted into number, number can be converted into molecule, because of which we are able to find out there are two atoms in a molecule of hydrogen. There are two atoms in a molecule of chlorine. There are two atoms in a molecule of nitrogen. There are three atoms in a molecule of ozone. इस तरीके से हमने हर गैस के अंदर फाइंड आउट किया, because we are able to convert volume into number of molecules. So this is because of two laws, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. ये दोनों के कारण ये possible हो रहा है हमारे सामने। Clear with this? So this is what we can say. So this is the law, and that's why these laws proved very crucial and very important. Because of these two laws, we are able to find out number of atoms present in molecule of compound. That is also called as atomicity. There is one concept called as atomicity. What is this atomicity? Is it like that Pune city, Bombay city? ऐसा नहीं है. Atomicity is how much number of atoms present in a molecule of compound. So how much number of atoms present in a molecule of compound, that is called as atomicity. Hydrogen molecule के अंदर कितने एटम हैं? दो एटम हैं. So it is a diatomic substance. Chlorine के molecule के अंदर कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं. That's why it is diatomic. Helium molecule के अंदर कितने एटम्स होते हैं? एक. Helium एक नोबल गैस है, और नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होते, वो अकेला एटम होता है, उसका मॉलिक्यूल एटम होता है, एटम ही मॉलिक्यूल होता है, तो अकेला एटम को मॉलिक्यूल कहा जाता है. सो दैट्स व्हाई ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. वो मोनो एटॉमिक, एक ही एटम होता है, उनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, एटम ही एक मॉलिक्यूल माना जाता है. सो दीज आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक. दिस इज कॉल्ड एज डायटॉमिक. ओजोन की बात करते हैं, O3 ट्राइएटॉमिक. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 ट्राइएटॉमिक. मीथेन CH4, तो कार्बन का एक, हाइड्रोजन के चार, पेंटाएटॉमिक. सो ऐसे बढ़ते जाएंगे. दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी. हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी. So there may be one atom, there may be two atoms, there may be three atoms, there may be four atoms, accordingly monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic and polyatomic, ऐसा हम लोग कहते हैं. And this is possible due to Gay-Lussac's law and Avogadro's law. All of you clear with this? And that's why Gay-Lussac's law and Avogadro's law has proven a very important question in the development of chemistry. That's why we can say they laid the foundation of modern chemistry. जो आज की तारीख में हम पढ़ते हैं H2 plus Cl. आज simply चलते चलते हम बोल सकते हैं कि H2 plus Cl, because it has been proved. And that's why, and this has been proved by Gay-Lussac and Avogadro. Clear with this? Hope so you got it. And that's all for this, both of the concept, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. एग्जाम में जिन्हें ये चैप्टर एग्जाम में रहेगा, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि टेम्परेचर का जो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, वो इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो उसके अंदर के 4 में से एक लॉ पूछा जाता है, और एवोगाड्रो लॉ पूछा ही जाता है. सबसे आईएमपी क्वेश्चन टॉपिक कौन सा था? एवोगाड्रो लॉ. आपके कॉलेज में एग्जाम होगा, एवोगाड्रो लॉ इसके अंदर रहेगा, बिकॉज इट्स ओनली एन इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी फंडामेंटल लॉ, और बहुत सिंपल भी है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस लॉ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एग्जाम ओरिएंटेड होगा. बस एक लॉ का इतना स्टेटमेंट है और उसका इलस्ट्रेशन याद रखना है. दैट्स ऑल. 2 मार्क्स आपके फिक्स होते हैं उसके साथ. दैट इज यू कैन से एवोगाड्रोस लॉ. क्लियर विद दिस? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट theory, next concept called as Dalton's atomic theory. So that is what we will discuss. Yeah. So
Let's go to next, called as Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. अभी देखिए, Dalton is a name of scientist again, and he put forth a theory called as Dalton's atomic theory. कल भी मैंने चलते थे एक सवाल पूछा था आपको, एक क्वेश्चन पूछा था कि हम इंसान हैं और हम पैदाइश से साइंटिस्ट टाइप होते हैं, बिकॉज सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। बस हम साइंटिस्ट इसलिए नहीं बनते बिकॉज हर सवाल का हम आंसर नहीं ढूंढते हैं, छोड़ देते हैं। उसी तरीके से देखिए ना, सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, ये दुनिया क्या है, कैसा बना है, किस चीजों से बना है। और ये सवाल सिर्फ आपको नहीं आता, सारी दुनिया का आना नॉर्मल भी है। दुनिया के हर पर्सन को आता है, हर इंसान को आता है, और सबको आता है। डाल्टन को भी आता है कि ये दुनिया किस चीजों का बना है और कैसे बना हुआ है। And he tried to find out answer for that one. We didn't, and that's why we never go to those scientists like, you may, because your future is just been starting, so you may have the chance. So this is the, we have to ask the questions and we have to find out the answer for the questions which are naturally arises. So the questions naturally arises in your mind. That has to be, we have to try to find out answers for these questions. So डाल्टन के दिमाग में भी सवाल आया कि दुनिया कैसा बना हुआ है। हमारे यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन में भी हम लोग कई सारे ऋषि मुनि जानते हैं जिन्होंने ये दुनिया किस चीजों का बना हुआ है इसकी कोशिश करने की कोशिश की। और हम जानते हैं कि खास करके आइडियल फिलोसॉफी में, यानी कि अध्यात्म के अंदर भी कुछ बाकी सारी चीजें आती है। और फिजिकल साइंस में ये भी माना जाता है कि ये जो दुनिया है, दिस इज मेड अप ऑफ अणु और परमाणु की बनी है, ऐसे हमारे ऋषि मुनि वगैरह कह के गए हैं। सो ये दुनिया अणु परमाणु की बनी हुई है, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दिस, व्हाट इज दिस अणु एंड व्हाट इज दिस परमाणु, जिसे हम लोग इंग्लिश में एटम एंड मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। अणु परमाणु जैसे हम लोग इंग्लिश में, ये संस्कृत भी वर्ड्स है और मराठी भी है, और एट द सेम टाइम इंग्लिश में उसे हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ? दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड बाय डाल्टन, और डाल्टन ने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की। एंड 18th century he put forth his theory related with what matter is made up of which things this matter is made up of. और मैटर जो है, जो हम निकल देगा कि मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज द मास is made up of the smallest particles known as atom, and this is the theory put in 18th century. तो सबसे पहला assumption क्या उसका, उस theory का, assumption ये है, the tiny particle of matter is an atom. Atom is a tiny particle. So we can here, atom is a tiny particle of matter. पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा मैं, जस्ट की पॉइंट लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। अगर सेंटेंस के फॉर्मेट में आप पढ़ने जाते हो तो नहीं पढ़ पाओगे। टाइनी मैटर, किसी भी मैटर का, जैसे कि हम पेन की बात करते हैं तो पेन भी एक मैटर है, और इसके अगर कट करते हैं तो सबसे छोटा पार्टिकल जो इसका मिलेगा वो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, यू कैन सी एटम। सो दिस इज मेड अप ऑफ एटम। सो सबसे टाइनी पार्टिकल जो है वो है एटम। सो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, सूक्ष्म, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड टाइनी, उसे टाइनी कहते हैं। सो एटम इज अ टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। दूसरा atoms of the same element are identical in nature. Atoms of the same elements are identical in all sense, all nature, all way. जैसे हम हाइड्रोजन के सारे एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के सारे एटम एक जैसे होते हैं। डाल्टन का कहना है। बाद में इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आ चुके हैं, नो डाउट एट ऑल, बट डाल्टन ने जो 18th century में थ्योरी रखा उसके हिसाब से हाइड्रोजन के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं। उनका मास सेम होता है, उनका एनर्जी सेम होता है, उनका वॉल्यूम सेम होता है, एवरीथिंग। So उनके physical properties सारे same होते हैं, like that. So atoms of the same elements are identical in all sense, that is in mass, energy and everything. So ये दूसरा है, atoms are identical, मतलब atoms are identical, but किसके? Of the same element. Atoms of the different elements are different. हाइड्रोजन का एटम अलग है, ऑक्सीजन का एटम अलग है, different, because they are different elements. ऑक्सीजन के सारे एटम एक जैसे हैं, हाइड्रोजन के सारे एटम एक जैसे, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम डिफरेंट है। सो दूसरे पॉइंट के अंदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिसिमिलर या नॉन आइडेंटिकल, ऐसा बोल सकते हैं। तीसरा whenever chemical reaction occurs, atom undergoes just rearrangement. Atom is neither created nor destroyed. ओके, ये भी उसका फोर्थ वाला है, मैं बोल सकती हूँ उसे, लेकिन मैं अभी थर्ड बता रहा हूँ। थर्ड के अंदर ये है, whenever chemical reaction occurs, atoms just undergo rearrangement. Atom just undergo rearrangement. उसके लिए एक रिएक्शन देना चाहूंगा मैं,
कि देखिए HCl प्लस NaOH ये रिएक्शन एकदम बेसिक है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। दोनों रिएक्ट होते हैं तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गोज विथ OH के साथ चला जाता है तो इट फॉर्म H2O और Cl गोज विथ Na तो फॉर्म NaCl। सो देखिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट्स विथ NaOH टू प्रोड्यूस NaCl एंड वाटर, मतलब एसिड प्लस बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। बस रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है, फिर भी ये रिएक्शन जब होता है तो इसमें जस्ट एटम का रीअरेंजमेंट होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी। तो डाल्टन सेज दैट whenever chemical reaction occurs at that time atoms just undergo rearrangement. So in that sense here हाइड्रोजन जो HCl के साथ जुड़ा हुआ था वो ब्रेक होके OH के साथ जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल तैयार करता है और Na सोडियम जो OH के साथ जुड़ा हुआ था वो ब्रेक डाउन करके Cl के साथ जुड़ जाता है और NaCl तैयार करता है। मतलब Na एटम Cl के साथ निकल गया, रीअरेंजमेंट हुआ, हाइड्रोजन एटम Cl को छोड़ के OH के साथ चला गया, रीअरेंजमेंट हुआ। So whenever chemical reaction occurs, atom just undergo rearrangement, nothing more than this. This is simply what we can say. यही Dalton's का एक third important assumption. And fourth important assumption, atom being a tiny particle, it can neither be created nor be destroyed. It is the ultimate particle of an matter. ऐसा उसने कहा था, ultimate particle. Actually बाद में ये प्रूव हुआ, it is not ultimate particle. ये आज की तारीख में दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जो माना जाता है वो है गॉड पार्टिकल, also called as हिग्स बोसन पार्टिकल। तो एटम भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन भी पायंस मेसॉन्स ग्लूऑन्स कैसे बने, ऐसे मोर देन 32 more than subatomic particles has been discovered by the scientist। और 4 से 5 साल पहले सन नाम का इंस्टीट्यूट जो है वहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके अंदर ये पार्टिकल ढूंढे गए। दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स है हिग्स बोसन पार्टिकल्स, आल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल्स। और एक साइंटिस्ट ये मानता है कि दुनिया में पार्टिकल नाम की कोई चीज है ही नहीं है, दुनिया सिर्फ एक एनर्जी का पैकेट है, दुनिया सिर्फ एक एनर्जी का बंडल है, ऐसा वो मानता है। तो अभी देखते हैं साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज रखते हैं, हमें वेरीफाई करने पड़ते हैं, वो जिस तरीके से प्रूफ देते हैं उसके ऊपर हमें विश्वास रखना पड़ता है। आज की तारीख में जितना प्रूफ है वो है कि दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल जो हिग्स बोसन पार्टिकल है। लेकिन 18th सेंचुरी में डाल्टन बात कर रहा था। डाल्टन वाज टॉकिंग इन 18th सेंचुरी एंड अकॉर्डिंग टू हिम एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। तो यही साइंस की खासियत है, यही साइंस की ब्यूटी है कि हम लोग जो थ्योरीज पहले रखे गए उस थ्योरीज को आगे लेके चल सकते हैं और नया कुछ ढूंढ निकाल सकते हैं। So that's what we can say. This is called as Dalton's atomic theory. Remember this? So that is what we can say here. तो ये हमारे लिए हो जाता है, ये हमारा एक important concept हो गया। So that is what. Now let's move to the next concept. Now there is a very important concept called as atomic weights and molecular weights. So let's move to the next one. Called as atomic weight. Okay. Let's move to the atomic weight. So what is this atomic weight now? That is what we discuss here. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज हमने देखा कि डाल्टन ने बताया कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, तो मैटर है। मतलब सबसे छोटा पार्टिकल अगर बात करते हैं हम लोग तो छोटा पार्टिकल इज यू कैन से एटम। और दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल अगर एटम है तो उस एटम के सारे प्रॉपर्टीज हमें जानना जरूरी है, सारे प्रॉपर्टीज हमें देखने पड़ेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम दैट हैज टू बी डिस्कस्ड। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एटॉमिक वेट। मतलब we have to find out weight of an atom। अभी इमेजिन कीजिए एटम बहुत ही स्मॉल एंटिटी है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। टिल डेट आज की तारीख तक तो दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट एटम को नहीं देख पाया है। किसी भी माइक्रोस्कोप के नीचे, किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी साइंटिस्ट तो एटम को नहीं देख पाया। फिर भी हमें एटम का वेट, एटम के प्रॉपर्टीज, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एटम का पूरा स्ट्रक्चर, उसके अंदर का सब कुछ पता है। न्यूक्लियस पता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के रिएक्शन पता है और उसके थ्रू हमने न्यूक्लियर एटम बॉम्ब भी बना लिया। जबरदस्त, यही साइंस की खासियत है। सो यही समझना पड़ेगा, यही जानना पड़ेगा कि एटम बीइंग अ वेरी स्मॉल एंटिटी, दो वी आर एबल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद दिस एटम। हम लोग बात कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मैटर डिस्कस किया। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड possesses weight and whose presence can be detected with our 5 senses, that is called as matter। and this world is full of matter। पेन मैटर है, नोटबुक मैटर है, बेंच मैटर है, फ्लोर मैटर है, घर मैटर है। हम खुद एक बहुत बड़ा मैटर होते हैं और किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल डालने में बस है एटम होता है।
and it is a very small entity. Till date, no one had seen under any electron microscope and all. But we are able to find out the properties. There are different properties related with an atom. One property amongst that is very important and fundamental for their atomic weight. कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो हम लोग जो दुकान में चले जाते हैं, हम किसी शॉप में चले जाते हैं, तो शॉप में चले जाने के बाद हम अगर वहां से 1 kg शुगर लेके आते हैं, तो वहां की उसके पास वे होता है, पुरानी वे की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वे, तो एक वे होता है जिस वे में वो क्या करता है कि यहाँ पे वो 1 kg का स्टैंडर्ड वेट रखता है, 1 kg का, और इस तरफ वो शुगर हमें देता है ना, किसी बैग, प्लास्टिक बैग में या किसी पाउच में बना के आपको दे देता है। जब ये शुगर इस 1 kg के साथ बैलेंस हो जाएगा, तब माना जाता है कि इस शुगर का वेट 1 kg। The reason behind that, we don't believe this sugar, but we believe in this standard weight, which was present in this one. और ये लॉजिकल बात है कि दोनों वेट अगर एक जैसे होंगे तभी बैलेंस होगा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वे आ चुके हैं, तो इस टाइप का भी आपको नहीं दिखाई देता, बट इसी टाइप के वेज होते हैं। सो दैट्स ऑल। और ये 1 kg के साथ कंपेयर किया जाता है। अभी एटम का वेट कैसे कंपेयर करेंगे? एटम तो बहुत ही स्मॉल एंटिटी है, और उसे कंपेयर करने के लिए फिर कोशिश की गई। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला स्टैंडर्ड जो है ना, वो हाइड्रोजन लाया गया। मतलब आज भी केमिस्ट्री में सबसे पहला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ही है। तो कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। जैसे कि हमारा अगर हाइट मेजर करने जाते हैं, तो हमारे पास एक मेजरिंग टेप होता है, उस टेप को हम लगाते हैं और फिर हमारा हाइट मेजर करते हैं। तो ऐसा कुछ तो रिलेटिविटी होता है ना। तो एटम का वेट भी अगर मेजर करना है, तो कुछ तो स्टैंडर्ड चाहिए हमारे पास, कुछ तो वेट के यूनिट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड लाया गया हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम हुआ, फिर ऑक्सीजन लाया गया, उसके साथ प्रॉब्लम हुआ, फिर क्लोरीन लाया गया, फिर उसके साथ प्रॉब्लम हुआ, फिर कार्बन 12 लाया गया। तो कुछ आज भी केमिस्ट्री के अंदर भले ही हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो कि कार्बन को स्टैंडर्ड मान के केमिस्ट्री के अंदर फिक्स किया जाता है। सो कार्बन नाम का एलिमेंट जो बहुत ही यूनिवर्सल है, खास करके हमारे ऑर्गेनिक लाइफ के अंदर, मतलब वी आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इटसेल्फ, नो डाउट, बिकॉज़ हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड इन दैट सेंस दिस नेचर इज ऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन ऑर्गेनिक नेचर। और जहाँ पे कार्बन बहुत ही यूनिवर्सल है, तो कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया, दैट इज यू कैन से कार्बन। और इस कार्बन का सिंबल है सी, कार्बन। और इस कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, these are isotopes of carbon. Isotopes you आप जानते हो, atoms of the same element having same atomic number but different mass number. Same atomic number but different mass number are called isotopes. तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 and 14. Out of these, carbon 12 is very important, and that is present in almost 98% in nature. Carbon 12 is present almost 98% in nature, and that is what we discuss carbon 12. So carbon 12 is considered as a fundamental or standard of the chemistry. कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 एंड ऑल, बट उसमें से कार्बन 12 इज बीन कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड। तो कार्बन 12 यहाँ पे स्टैंडर्ड माना जाता है। नाउ इस कार्बन 12 को अगर हम आगे लेके जाते हैं, तो कार्बन 12 के अंदर एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बन 12 के अंदर उसका 12 ग्राम क्वांटिटी लिया जाता है, कार्बन 12 का 12 ग्राम क्वांटिटी लिया जाता है, और उस 12 ग्राम क्वांटिटी के अंदर एटम देखे जाते हैं, एंड वी फाउंड दैट 6.022 into 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स मिलते हैं, देख लेना। कार्बन 12 के 12 ग्राम क्वांटिटी के अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स मिलते हैं। इतने एटम्स है, मतलब क्वांटिटी देखिए कितनी है कि 12 ग्राम क्वांटिटी बहुत छोटा है। हम सोने की बात करते हैं, हम दुकान में सोना लाने के लिए जाते हैं, तो हम 1 तोला सोना बोलते हैं। 1 तोला मतलब कितना होता है? 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब 1 तोला होता है, और उसकी कीमत आज की तारीख में ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, तो 1 तोला मतलब 10 ग्राम है। 10 ग्राम से 2 ग्राम ज्यादा है, तो 12 ग्राम क्वांटिटी बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। और ये 12 ग्राम कार्बन 12 की अगर 12 ग्राम क्वांटिटी लेते हैं, तो उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स है। अभी मतलब एटम कितना छोटा होगा उसका अंदाजा आता है। अभी ये फिगर तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। इस फिगर का मतलब देखिए कितना है, 6.022 into 10⁻23, 6.022 into 10⁻23। इसका मतलब ये है, ये 6 के ऊपर 23 जीरो देने हैं, 23 जीरो। आप देखिए एक बार काउंट करके। चलो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि दिस इज द 6 जो हमने यहाँ पे लिया है, ये 6 लेते हैं, और ये 6 के ऊपर हम पहला जीरो यहाँ पे लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट जीरो व्हाट वी हैव पुट हियर। कितना हो गया? 60, और एक जीरो 600, और एक जीरो 6000, और एक जीरो 60,000, और एक जीरो 6 lakhs, और एक जीरो 60 lakhs,
और एक जीरो, अभी काउंट कीजिए, मिलियन बिलियन ट्रिलियन और एक ऐसे दो चार जीरो देता हूँ मैं, अभी काउंट कीजिए, हमारा काउंटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आप देखिए जीरोस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माना कि और दो भी ज्यादा आते तो हम 13 14 15 जीरो तक काउंट कर सकते हैं, उसके आगे काउंट करना डिफिकल्ट जाता है। और यहाँ पे 10⁻23 मतलब 23 जीरोस देने 6 के ऊपर। 12 ग्राम क्वांटिटी के अंदर जो इतना सा क्वांटिटी होगा, इस क्वांटिटी के अंदर 10⁻23 जीरो इतने एटम्स, सॉरी कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो आप देखिए कि क्वांटिटी कितना छोटा ही है और इतनी क्वांटिटी के साथ हम लोग डील करते हैं, तो इट्स डिफिकल्ट। ओके, इट्स डिफिकल्ट टू डील विद दिस मच क्वांटिटी बीइंग इट्स वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है एंड इस क्वांटिटी के साथ हम लोग डील करते हैं। क्लियर विद दिस? सो इन दैट सेंस यू कैन से हियर कार्बन का एंटिटी बहुत ही स्मॉल है एंड दिस वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इट्स, बट टिल इट्स एटॉमिक वेट इज बीन मेजर्ड, और वो किस तरीके से मेजर किया ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट। अब डेफिनेशन फॉर्मेट में जाना था तो बहुत सिंपल तरीके से मैं डेफिनेशन बोल के आगे जा सकता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इस कॉन्सेप्ट का, ताकि ये कॉन्सेप्ट अगर अंडरस्टूड हुआ तो आगे इसमें बहुत इजी जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सो नाउ ये कैसे फाइंड आउट किया गया? तो ये फाइंड आउट किया गया है कि इस तरफ इसके अंदर कार्बन 12 रखा गया और यहाँ पे कार्बन 12 का एक एटम रखा गया है समझो, और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन रखे गए, इसके अंदर हाइड्रोजन रखे गए, फिर एक हाइड्रोजन, अभी ये तो कार्बन 12 है, बड़ा एटम है तो ये हेवी होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर इसके अंदर और एक हाइड्रोजन पुट किया, दूसरा हाइड्रोजन पुट किया, तीसरा हाइड्रोजन पुट किया, ऐसे करते 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 पता चला कि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन रखने के बाद 12 हाइड्रोजन के एटम कार्बन के एक एटम के इक्वल होते हैं, मतलब एक एटम का, कार्बन के एक एटम का वेट हाइड्रोजन के 12 एटम्स के बराबर, मतलब वी कैन से कार्बन इज 12 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन इज 1/12 टाइम लाइटर देन कार्बन, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कार्बन इज 12 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन इज 1/12 लाइटर देन कार्बन, और इसीलिए इसी फॉर्मेट में वेट फाइंड आउट किया। एटॉमिक वेट इज अ वेट ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद 1/12 मास ऑफ कार्बन, मतलब इसका अगर 1/12 लेते हैं तो इसका एक ही एटम आएगा, one atom of hydrogen is 1/12 of carbon 12, इसका 1/12 है। So atomic weight is a weight of an atom compared with 1/12 mass of carbon isotope 12। कार्बन आइसोटोप 12 के साथ हम कंपेयर करेंगे तो 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप 12 के साथ कंपेयर करके जो भी वेट होता है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक वेट, उसको हम लोग एटॉमिक वेट ऐसे कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन का माना जाता है, 1 AU SO3 माना जाता है। एंड दिस इज विल प्रूव दैट कि अगर 1 AM की बात करते हैं तो दैट मास बीइंग दिस मास इज वेरी स्मॉल, उसे किलोग्राम में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, और इसीलिए किलोग्राम ग्राम में ये बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी होते हैं उसके सामने, and that's why it is expressed in AMU, that is unified mass, atomic mass unit उसे कहते हैं, और आज की तारीख में उसे unified mass just U से बताते हैं, you can say just U, so this is called a unified mass। तो one atomic mass मतलब one unified mass, and this is nothing but 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम ऐसा होता है, या फिर 10⁻⁻27 किलोग्राम, इस फॉर्मेट में वो आएगा। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, तो ये आता है वन एटॉमिक मास यूनिट। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज दिस, एंड दिस व्हाट वन एटॉमिक मास यूनिट इज वन एटॉमिक मास यूनिट आल्सो नोन एज वन यूनिफाइड मास, एंड व्हिच इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। माइनस है तो इसके पहले 24 जीरोस में, इतना छोटा है वो। सो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कैन से, दिस इज द मास। सो यहाँ पे दो चीजें आती है, एटॉमिक वेट का एक डेफिनेशन एंड ये रिलेशन आता है। तो डेफिनेशन मैंने ये बताया कि वेट ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, weight of atom of any element compared with 1/12 mass of carbon isotope 12, carbon isotope 12 is called as atomic weight, or you can say atomic mass। एक्चुअली मास ज्यादा परफेक्ट होता है क्योंकि हमने कल ही उसके बारे में देखा कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, उसका डिफरेंस हमने कल ही देखा। सो इन दैट सेंस वी कैन हैव हियर, क्लियर विद दिस। सो वंस अगेन एक बार डेफिनेशन क्या होता है, द weight of an atom of element compared with 1/12 mass of carbon isotope 12 is called as atomic weight। मतलब कार्बन आइसोटोप 12 के 1/12 मास के साथ कंपेयर करके जितना भी वेट होता है इक्वल, वो वेट किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है, और वो हाइड्रोजन का फाइंड आउट किया गया है, वो 1 AM का है, एंड दैट 1 AM is equal to 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। इसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं।
clear with this? So this is what we are here. So this is the concept of atomic weight. Similar वे पे हम लोग को कॉन्सेप्ट मिलता है मॉलिक्यूलर वेट का मिलता है. जैसे हमने यहाँ पे एटॉमिक वेट लिया है, उसी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है मॉलिक्यूलर वेट. तो जैसे हम लोग यहाँ पे एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर वेट का. इन शॉर्ट WT लिखा जाता है, वेट के लिए WT लिखा जाता है. सो दिस इज यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट. तो एटॉमिक वेट जैसे एटम का होगा, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का होता है. तो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल, जैसे कि हम वाटर की बात करते हैं तो H2O आएगा, ऑक्सीजन की बात करते हैं OT आएगा, क्लोरीन की बात करते हैं Cl2 आएगा, हाइड्रोजन की बात करते हैं H2 आएगा, मीथेन की बात करते हैं तो CH4 आएगा. ऑल दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस. ऑल दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस. यहाँ पे एटम्स आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, जो भी है सारे एटम्स आएंगे. सो वेट ऑफ एटम compared with 1/12 mass of carbon isotopes is called atomic weight. उसी तरीके से weight of molecule compared with 1/12 mass of carbon isotope 12. यहाँ पे atomic weight कंपेयर करना है, यहाँ पे molecular weight कंपेयर करना है. कंपेयर उसी के साथ करना है. 1/12 mass of carbon isotope 12 is called as molecular weight. So this is the concept of molecular weight. So molecular weight is weight of molecule compared with 1/12 mass of carbon isotope 12 is called as molecular weight. यह रहा उसका डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में. सिंपल तरीका क्या है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का? तो ठीक है, सिंपल तरीका ये है. सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो उसे 2 माना जाता है. तो 2 × 1 ये है, मतलब ये बड़े ब्रैकेट में 2 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. और एक एटम का वेट कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1. तो फाइनली ये कितना आता है? देखिए 2 1 2 प्लस 16 1 16. तो 16 प्लस 2 कितना आता है? 18. तो 18 इज मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन की क्या बात करते हैं? तो ऑक्सीजन के अंदर कितना आएगा? देख एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई कितना है 2 एटम्स, इट विल बी 32. क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 into 2. 35 एक एटम का होता है. पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे एटॉमिक वेट दिए हुए हैं. तो यहाँ पे क्लोरीन के अंदर 2 एटम्स है, तो 2 एटम्स के लिए 2 और एक एटम का वेट होता है 35.5. तो दिस बिकम्स 71. ये होता है. हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आएगा. CH4 इसके अंदर देखिए कार्बन का होता है 12 इंटू नंबर ऑफ एटम 1 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू एटम्स कितने हैं 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 12 1 12. हियर 4 1 4, so it will comes to 16. So this is the molecular weight. So this is the way how we are going to calculate the molecular weights. Numerical point of view ये सारे हम लोगों को आने चाहिए. Definition exam oriented learn करना है और understanding numerical point of view. This is the understanding how we are going to calculate the molecular weight. This is according to understanding and exam point of view. And ये जो है जो statement बताया मैंने, statement exam point of view होता है वो learn करना पड़ेगा. That is the weight of molecule of a compound compared with 1/12 mass of carbon isotope 12 is called as molecular mass. And the weight of atom compared with 1/12 mass of carbon isotope 12 is called as, you can say, atomic weight. So this is what we have. These are the very important concepts over here. What we have seen. Now, the only 2 to 3 concepts are remaining from this chapter. So one concept is nothing but the mole concept, which is very important. And the next limiting reagent and stoichiometric coefficients. These are the small 2 concepts. Or percentage, how to calculate the percentage of the substances. These are the 2 to 3 concepts small remaining. तो कल के लेक्चर में पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो आज हम लोग वापस एक बार रिकैप करते हैं क्या देखा हमने आज के लेक्चर में. टुडे वी हैव स्टार्टेड लेक्चर with, you can say here, with Avogadro's law. So we have seen how Avogadro's law is there and how it is useful to relate with the Gay-Lussac's law and to prove the atomicity law. Second concept what we have seen, that is, you can say Dalton's atomic theory. So it has 4 to 5 assumptions. What we have seen कि एटम कैसा होता है, क्या होता है, कितना होता है, वो हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. और उसके बाद देखा हमने दैट इज, यू कैन से हियर, कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड कांसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. सो ये दोनों कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है. एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट के अंदर उनका डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये चाहिए. और सबके एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट लर्न किए जा सकते हैं. हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कई सारे एटम्स हैं, उनके एटॉमिक वेट हम जानते भी है और थोड़े लर्न भी करने पड़ेंगे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो. एंड मॉलिक्यूलर वेट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का इस फॉर्मूला से, मतलब कितने एलिमेंट है उसके हिसाब से वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स नंबर ऑफ एटम, ये पहले ब्रैकेट में. दूसरा वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इनटू इट्स नंबर ऑफ एटम. फिर तीसरा ऐसा जितने एलिमेंट होंगे उतना वो उसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट.
जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे उसके अंदर और एक बार हम ध्यान रखेंगे, बट दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑल. Clear with this? So that is what we are here for. So that's all for today. See you tomorrow, and tomorrow we'll close the chapters, and then after that we'll have the doubt sessions with each other, front to front डाउट सेशन हो जाएंगे, ताकि आपको कुछ अगर डाउट्स है तो हम लोग फेस टू फेस बात कर पाए और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. Hope so you got it. Thank you very much. See you tomorrow. So thank you very much.